Hi everyone, in this video I'm going to cover the very first chapter of your subject computer, which is MS Excel formulas in MS Excel 2016. Let's just begin, and let me tell you that MS Excel, it plays a very important role, a very vital role um, in keeping the records, be in schools, in hospitals, in industries. Your report cards, they are made using these Excel sheets only. Okay, so we just apply the formulas, percentage and every average total, so it's in our hand within few minutes. It's very much important because you know better that everything around us, it's getting digitalized. So you need to know the common, obviously the common and the general tic tacs of the computer, and Excel is one of them. And so let's just begin. So the first topic of this chapter is cell referencing. So now, whenever you visit somebody's house, so you need to know their address first, then only you'll be able to visit them. So in the same way, if I want to add the numbers in the of any particular marks, or I just want the addition of all these marks, 96, 95, 75, 85 and 78. So what I'll do is, I'll not just write these numbers ki 96 plus 95 plus 75 plus 85 plus 78. No, I'll not just write these numbers. what I'll do is, मैं यहाँ पे हर एक सेल का ना एक नंबर होता है, ठीक है, तो उस सेल के नंबर को I'll just write it over here and I'll just press the enter. वो फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी मेरे पास आंसर आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे ऐसे नंबर्स नहीं लिखते हैं, वी जस्ट राइट दी सेल नंबर्स. ठीक है, ये पर्टिकुलर नंबर्स नहीं लिखते. 96, 95, जिस सेल में ये 96 लिखा हुआ है, सेल होता है एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आर रोज एंड व्हाट आर कॉलम्स. You might have studied this rows and columns in your lower classes. If not, then just see over here. ये जो आपके लेटर्स लिखे हुए हैं, दीज आर दी कॉलम्स, एंड जहाँ पे आपके नंबर्स लिखे हैं, दीज आर दी रोज. ओके, सो देखो आप यहाँ पे कॉलम और यहाँ पे रो, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो एक सेल बन रहा है. ओके, सेल का, तो सेल इज नोन एज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल जस्ट राइट दी number of that particular cell, each particular cell, and I'll just add them and I'll just press the enter. I'll not write the marks. ठीक है, so अभी ये करके दिखाते हैं. बहुत हो गया verbal part आपका theoretical. So let's just jump into the practical. Also, one more thing, I'll be teaching this chapter through the practicals only, so you can perform the practical side by side if you're having laptops or computers. Or what you can do is, if you're watching this video, obviously you're having Android cell phone, so you have to just download MS Excel and you're good to go. So what I'm gonna do is, I have to just put the formula. Okay, so in MS Excel, every formula actually, it starts from an equal sign. हमेशा MS Excel का फॉर्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट होगा. आई जस्ट पुट दैट इक्वल साइन ओवर है. एंड नाउ, मैंने क्या बोला था, मुझे नंबर्स को, ये दीज आर माई सब्जेक्ट्स एंड दीज आर द मार्क्स इन दीज रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. सो मैंने आपको क्या बोला था कि मैं इन मार्क्स को नहीं लिखूंगी ऐड करने के लिए. आई जस्ट राइट द सेल नंबर. सो लेट्स जस्ट राइट द सेल नंबर. हाउ टू आइडेंटिफाई द सेल नंबर, लेट मी टेल यू how to identify the cell number. So let's just take a good color again. Okay, so अगर मैं देख सकती हूँ, अगर आप भी देख पा रही हैं ठीक से, तो ये जो मेरा कॉलम है, बी नाम का कॉलम, इसके ठीक नीचे 96 इसके ही नीचे लिखा गया है, एंड मेरे जस्ट 6th रो के सामने लिखा गया है. ठीक है, तो इस सेल का जो नंबर है, वो मेरा सेल का नंबर बन जाएगा B6. देखो, जैसे मैंने B6 लिखा, यहाँ पे हाईलाइट होने लगा, इसका मतलब आई एम करेक्ट. ओके, नाउ प्लस, क्योंकि मुझे सभी का एडिशन चाहिए, तो मैं इस वाले सेल का भी नंबर लिखती हूँ. लेट मी जस्ट डेमोन्स्ट्रेट यू अगेन इफ यू डिडंट अंडरस्टूड इन द फर्स्ट गो. ओके, नाउ अगेन 95 इज रिटन बिलो this B column and straight in front of this 7th row. So इसका नाम हो गया, 95 वाले सेल का एड्रेस हो गया B7. So let's just write it, B7.
7. सी आई हैव रिटन द करेक्ट. ये रेड से आया था तो ये रेड से हाईलाइट होने लगा. ठीक है. सो नाउ ओके. सो नाउ अगेन अ प्लस का साइन. B8. आई होप बाय दिस टाइम आ गया होगा आपको सेल का नंबर बनाना. B9. B10. Okay, I'm done with all these numbers, all the cell references, all the cell addresses, all the cell numbers obviously. Now I'll just press the enter. See, magic, 429. Okay, I got my total of these marks, 429. So now in relative, so this was the thing that ऐसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, ऐसे हमारा फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखा जाता है. एंड आपका देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है. B6, लेट मी जस्ट शो यू. ये देखिए. ठीक है. सो दिस इज़ द फॉर्मूला बार. ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला बार. सो रिलेटिव रेफरेंस कहता है कि अगर आप एक चीज़ जगह पे अगर आप आपका फॉर्मूला लगा के आप अपना कोई भी अपना सम निकालते हो या प्रोडक्ट निकालते हो, तो अगर आप वही फॉर्मूला दूसरी जगह पे अप्लाई करते हो तो वो रोज़ एंड कॉलम्स को अपने आप चेंज कर लेगा. रोज़ एंड कॉलम्स को खुद चेंज कर लेगा का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे इस वाले सेल का नंबर है B6, इसका नंबर है B7. तो अगर आप ये फॉर्मूला कहीं और कॉपी करोगे तो ओब्वियसली हर जगह तो आपका सेल का नंबर B6 B7 रहने वाला नहीं है, चेंज ही होगा. ओके. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, रादर देन टेलिंग यू verbally, let me just show it, demonstrate you through the practical. I'll just copy this. I'll just copy. I have made a sheet down here with the, see I have written different numbers. So let's just copy it over here. देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है. ठीक है. ओके, इट इज़ ट्रू. 439, आई गॉट द करेक्ट आंसर. देखते हैं कि वो रोज़ एंड कॉलम्स वाला पार्ट क्या था. ठीक है. डबल क्लिक ऑन इट. नाउ सी B39. B39. If I am correct, yes, B39. See, this is written under B and बिल्कुल 39 के सामने. B40, it is written under B and बिल्कुल 40 के सामने. और दिस इज़ रिटन अंडर B41 के सामने, अंडर B42 एंड इन फ्रंट ऑफ 43 एंड अंडर B. राइट. सो इफ़ अगर रिलेटिव रेफरेंस का हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, नाउ लेट्स जस्ट, हमने अभी उसको लगा करके देखा, इट्स ट्रू. ठीक है. मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा था इसमें, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा था जिसका रो था B6 B7 B8 B9 B10. बट मैंने यही फॉर्मूला किसी और रो एंड कॉलम में अप्लाई करा तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल अपना रो एंड कॉलम वो अपने आप ही चेंज हो करके उसने फॉर्मूला को अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लिया एंड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. Okay, so this is called as relative referencing, which means if we'll copy the formula, then the rows and columns, they will get changed. Okay, so now let's come on to the absolute referencing. So absolute referencing, it says that the rows and column references, they do not change when we copy a formula because the reference is to a fixed cell address. It uses $2 signs. It is actually 2 in the reference, one for the column letter and the other for the row number. ठीक है. एब्सोल्यूट रेफरेंस जो होता है आपका, एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस में जब भी आप फॉर्मूला को कॉपी करोगे तो उसमें रो एंड कॉलम बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है. तो वो क्या करता है, आपके कॉलम के लेटर के आगे से भी एक डॉलर का साइन लगा देते हैं और रो नंबर के आगे से भी आप डॉलर का साइन लगा देते हो, तो उससे क्या हो जाता है, वो एब्सोल्यूट बन जाता है. सो rather than just doing understanding the theory again and again, let's understand the things through the practical only. So what I'm gonna do is, हम absolute reference पढ़ने जा रहे हैं, तो just understand the changes if you're not understanding the theory. So अब what I'm gonna do is, obviously the formula here, it starts with the equal sign. And now what I'm gonna do, I'll just apply the absolute reference जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है,
बिल्कुल भी रोज एंड कॉलम्स चेंज नहीं होता है. ओके, सो let's just apply the formula. The formula has begun with the equal sign. Now let's just apply. Let me just first show you those, for those students those who haven't understood. So, oh god, what has this happened? Okay, so now this 96 is written here below B and right in front of 17. So what will I write? What is the name of this cell? B17. Okay, नाउ आई जस्ट, कि मुझे नहीं चाहिए कि अगर मैं ये फॉर्मूला पुट करूँ कहीं और तो वो अपने आप रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर ले, मेरे को नहीं चाहिए. तो व्हाट आई एम गोना राइट ओवर इन फ्रंट ऑफ इट इज डॉलर. फाइन, मैं डॉलर लिख दूँगी और मैं 17 के पहले भी मैं यहाँ पे डॉलर लिखूँगी. ओके, फर्स्ट लेट्स, ओके, आई विल जस्ट राइट इट डॉलर and 17. What I have written this? Acha. Okay, let's write it properly. B, then again dollar, and it's 17. See, reference कर रहा है इसको, ठीक है, रेफर कर रहा है, reference not रेफर कर रहा है. Now again B, it's okay, B again 18. Fine, plus again dollar, B again 19, plus again dollar, B 20, again B dollar 21. All are being highlighted. Let's just press enter. I got the answer 429. ठीक है. Now I'll just copy the same thing. See the in the formula bar the formula is being displayed. Let me just show you. See, okay. So now I'll just copy this नीचे over here. ठीक है. I'll just remove this. Let me clear. Remember it is 439. Okay, I'll just remove this and now I'll copy that absolute formula over here. See, nothing is copied. Why? Because I have copied the this absolute एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग वाला फॉर्मूला. ठीक है, एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग वाला फॉर्मूला में क्या होता है, हर एक कॉलम और उसके सामने, रो के सामने आप डॉलर का साइन लगा देते हो कि अगर आप इस फॉर्मूले को कहीं और कॉपी भी करोगे तो ये फॉर्मूला उसमें आपका रो और कॉलम चेंज करके वर्क नहीं करने वाला है, जैसे आपका रिलेटिव रेफरेंस करता है. ठीक है, सो as I copied it over here, it just displayed nothing. It just displayed nothing. I'm again copying C. It's displaying nothing because it is not flexible. Absolute reference is not flexible at all. ठीक है, अगर आपने relative reference को copy किया होता तो वो rows and columns को change करके, it is because it is flexible, तो इसके हिसाब से rows and columns को change करके इसका sum ले आता. ठीक है, but absolute referencing में ऐसा बिल्कुल नहीं था. ऐसा क्यों नहीं था, डबल क्लिक करके चेक कर लीजिए, क्योंकि हमने हर एक रो और कॉलम के आगे से डॉलर का साइन लगा के उसको एब्सोल्यूट यानी कि फिक्स्ड बना दिया था. ये फॉर्मूला सिर्फ इसी के लिए ही वर्क करेगा. ओके, सो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू दी मिक्स्ड रेफरेंस. मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, दोनों चीज़ें, द रो और कॉलम रेफरेंस इज रिलेटिव वाइल द अदर इज एब्सोल्यूट. तो इसका मतलब ये है एक्चुअल में आप जिसके आगे से आप लगाने वाले हो डॉलर, बस वो फिक्स्ड रहेगा लेकिन दूसरी चीज़ एब्सोल्यूट रहेगी. ठीक है, चलो देखते हैं. अगेन द थिंग इट विल स्टार्ट विद द इक्वल साइन. सो हम पहले आई विल जस्ट पुट dollar sign in front of column. I'll not put a dollar sign in front of row. Okay, so which row it is, 30. Fine, plus now I'll just put the dollar sign in front of
row 31. Okay, so now let's just do it for um, all the B and 32. Fine. Now let's just do it for 33. Fine. Okay. Acha, I have one more. I'll just write it over here. B 29. Fine. I'll just press enter. Okay. Okay, I've got the answer. Now I'm going to copy it. Okay. So let's just copy it. Okay, it has become so small. Let's just increase it. 55 is enough. Okay, so I'm now going to copy it over here, which I made it separately for copying the things. It's 435. ऐसा क्यों हुआ? तो डबल क्लिक करके इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इट इज़ B30. फाइन, B30. देखो, B के आगे डॉलर लगा है और 30 के आगे डॉलर नहीं लगा इसमें. तो इसमें देखो, यस, इसने क्या करा है, अपने आप को B40 अपने आप बना लिया. देखो, फर्स्ट वाले में क्या था, पिछले फॉर्मूले में क्या था आपका, सेकंड वाले जो आपका रो था उसमें डॉलर नहीं लगा था. लेट मी जस्ट शो यू. यहाँ पर अगर आप चेक करो तो कॉलम के आगे यानी कि अल्फ़ाबेट वाले के आगे डॉलर लगा हुआ है, यानी कि वो फिक्स्ड है. बट जो नंबर्स है यानी कि रो है 30, उसमें मैंने डॉलर नहीं लगाया, यानी कि वो रिलेटिव है. यानी कि अगर मैं ये फॉर्मूला कहीं कॉपी करूँगी तो बी कभी चेंज नहीं होगा, बट आपका 30 उस रो या कॉलम के हिसाब से, उस रो के हिसाब से चेंज हो जाएगा. ओके, सो यही चीज़ हुआ है यहाँ पर. सी B40 चेंज हो गया वो, ठीक है. बट अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल. ओके, इट्स लाइक B31. तो मैंने रो यानी कि जो नंबर है रो 31, उसके आगे डॉलर लगाया. सो लेट्स जस्ट सी. मेरे हिसाब से तो डॉलर जिसके आगे होता है वो कभी चेंज नहीं होता. तो लेट्स जस्ट सी, मैंने यही फॉर्मूला कॉपी किया था. तो लेट्स जस्ट सी, डबल क्लिक, सी 31 हैज़ नॉट चेंज्ड. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपको हाईलाइट करके भी बता रहा है कि मैंने किसका सम निकाला हुआ है. ठीक है, तो ये देखो, जिसके आगे डॉलर है वो चेंज ही नहीं हुआ है. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट the cell referencing. I hope the things are clear. If the things are not clear, just watch this video again and again and the things will be clear. And I'll just advise you people to, perform the practicals along with the video, so the things will be much clearer to you. So by the time I am teaching you only this topic, so that you can perform the practicals also at your house, and please do perform the practicals. And I'll be covering the other topics like AutoSum, and I think GCD and LCM is also there, AutoSum is also there, and much more topics are there, I think. So I'll be covering all those topics in the next video. So by that time, take care.